نہ ہو دل کو تم ایسے بدل جاتے. علیزے نے سرور صاحب کو میرے ہی چیکس کلیئر کرنے سے منع کر دیا. آپ کل کے کل علیزے کو فائنانس ہیڈ کی سیٹ سے فائر کیجیے. اس یونیورسٹی کے ایک اولڈ اسٹوڈنٹ کا بایو ڈیٹا چینج کروانا ہے میں نے. اور تم یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ بس یوں سمجھیں کہ آنے والے وقت کی تیاری کر رہی ہیں. کرو گے تو تم وہی جو میں چاہوں گی. یہ کاروبار اب تمہیں الگ کرنا ہوگا. کافی ٹائم ہو گیا ہے ہماری شادی کو. ہمیں بھی تو فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے نا. مجھے نہیں لگتا کہ بھی فیملی آگے بڑھانا از اے گڈ آئیڈیا. کہ کل سے اس آفس میں یا تو علیزے رہے گی یا میں. اگر دشمن آپ کا پکا نہ ہونا تو کھیلنے میں مزہ نہیں آتا. مشکل ہے کیا؟ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ کھیل آپ کی زندگی کی بساط ہے جو مخالف ٹیم سے آپ کو بچائیں. ارے یہ کیا ہے سب؟ ایکچولی گھر کی پہلی خوشی ہے تو اس لیے آنٹی نے اتنی ساری مٹھائی لے لی ہے. آپ کا منہ میٹھا ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ اس ہفتے بہت بڑی رسموں کی گود بھرائی کی. تھینک یو سو مچ. آپ میرے اور حمزہ کے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہیں. آنیسٹلی مجھے تو ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے نا آنٹی. تھینک یو آنٹی. گود بھرائی کی رسم کرنے کے لیے تو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. چلو دیٹس گریٹ. اچھا میں ذرا چینج کرنے جا رہا ہوں. اوکے جانتی ہوں اور یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نہیں کہیں گی اور آگے بھی میں اپنے حق اسی طرح لیتی رہوں گی. اس لیے اپنا حق مجھے خود لینا ہوگا. ایکچولی حمزہ آنٹی نے کہا کہ گھر کی پہلی خوشی ہے تو سب کا منہ میٹھا ہونا چاہیے. میں تمہیں تمہارے روم میں بھی دیکھ کر آئی ہوں. تم وہاں بھی نہیں تھی اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو. نہ تم نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا نہ لنچ کیا. رات کا ڈنر بھی تم نے واپس بھجوا دیا. یہ کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے. وہ لڑکی جس سے آپ اتنی نفرت کرتی تھی, جس کا وجود بھی آپ کو اس گھر میں گوارا نہیں تھا, حیرت تو مجھے آپ پہ ہو رہی ہے. آج اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہیں. ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کو چیک اپ کرایا جا رہا ہے. تو میں وہ عورت ہوں جو وقت اور حالات کے مطابق قدم اٹھاتی ہے. میں تو بس یہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو وہ کہہ رہی ہے سچ ہے یا جھوٹ. تو کیا کروں میں؟ آپ بتائیں مجھے کیا کروں میں؟ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تمہاری یہ حالت دیکھ کے تو وہ آسمان پہ چڑھ جائے گی. جب سے اس کی پریگننسی کی خبر سنی ہے تو برا حال ہو گیا ہے. تو اولاد بھی پہلے ہمیں ہونی چاہیے تھی نا. ہر بار جیت جاتی ہے وہ. ہاں اس کی قسمت اچھی ہے. پہلے میری اور سکندر کی شادی ہوئی تھی. یہ تم کیا مڈل کلاس عورتوں کی طرح باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں نا, اولاد کا ہونا یا نہ ہونا. اگر تمہیں اتنا ہی فیل ہو رہا ہے تو بیٹا جاؤ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لو, جا کے اپنا چیک اپ کرواؤ پلیز. اب تم مجھے روتی ہوئی نظر مت آؤ. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. سیٹ سامل کو اسٹرکٹلی وارن کرتا ہے کہ جو بھی ہو جائے تم نے وہاں پہ قبضہ لے کے رہنا ہے. اور وہ مزید یہ بھی کہتا ہے کہ کیونکہ میں اس کا آگے سودا کر چکا ہوں اس لیے تمہیں تو پتا ہے کہ سیٹ اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتا. مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سامل بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ سامل کے سامنے بہت ہی زیادہ بھاری رقم رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم اب مجھے مایوس نہیں ہونے دو گے. اس کو اپنے بندوں میں بانٹ دینا اور میرا کام ہو جانا چاہیے. دوسری طرف جب سامل کو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے نہ کیا تو سیٹ اپنے گونڈوں سے یہ کام کروا کے ہی چھوڑے گا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اور تب وہ پیا کو بٹھاتا ہے اور پیا کو ساری بات بتانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہاں پہ وہ پیا کو کچھ بھی نہیں بتا پاتا. اور تبھی وہ پیا کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کا والد پہلے ہی سامل سے بہت ہی زیادہ بدگمان ہو چکا ہے اور اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا.
تو یہاں پہ جب برڈ شاپ پہ اگین حملہ ہوگا تو تب اس کے باپ کو خبر پہنچے گی کہ کچھ گنڈوں نے آپ کی برڈ شاپ پہ حملہ کر دیا ہے اور ادھر دھاوا بول کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بیڈ ریسٹ پہ ہے تو پیا بھاگتی دوڑتی وہاں پہ پہنچ جائے گی. تو سامل ادھر پہلے سے ہی پہنچا ہوا ہوگا اور وہ ان کو مار کٹائی کر رہا ہوگا تاکہ وہ اس زمین پہ قبضہ نہ کر سکے. لیکن یہاں پہ پیا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے یہ سمجھے گی کہ شاید یہ سارا کچھ سامل نے کیا ہے اور جب سامل اسے ملنے کے لیے آئے گا اور اپنی بات کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو تب وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنے گی اور کہے گی کہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی اور نہ ہی میں تم سے ایسے کوئی توقع کر سکتی تھی. اور اسی کسی بھی بات پہ یقین دیے بغیر کو اس کے منہ پہ دروازہ دے مارتی ہے. یہاں پہ سامل بہت ہی زیادہ مایوس لوٹ جاتا ہے اور تبھی وہ جا کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب گل بد گئی ہے اور کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب الیار بھی پیا کو جاننے لگا ہے اور تبھی وہ اپنے باپ سے اس کے رشتے کی بات کرتا ہے کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں لڑکی بہت ہی زیادہ پسند ہے اور آپ اور ماما جل کے اس کے گھر رشتے کے لیے جائیں. پہلے تو اس کا باپ مزاحمت کرتا ہے کیونکہ ان کی آپس میں بہت ہی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو تب وہ ایزیلی مان جاتا ہے. مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسے ہی پیا کے والد کی ملاقات ہوگی الیار کے والد سے تو وہ اس رشتے سے صاف منع کر دے گا اور اسے دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دے گا اور مزید یہ بھی کہے گا کہ کبھی اگین میرے گھر کا رخ نہ کرنا. دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. سیٹ سامل کو اسٹرکٹلی وارن کرتا ہے کہ جو بھی ہو جائے تم نے وہاں پہ قبضہ لے کے رہنا ہے اور وہ مزید یہ بھی کہتا ہے کہ کیونکہ میں اس کا آگے سودا کر چکا ہوں اس لیے تمہیں تو پتا ہے کہ سیٹ اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتا. مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سامل بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ سامل کے سامنے بہت ہی زیادہ بھاری رقم رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم اب مجھے مایوس نہیں ہونے دو گے. اس کو اپنے بندوں میں بانٹ دینا اور میرا کام ہو جانا چاہیے. دوسری طرف جب سامل کو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے نہ کیا تو سیٹ اپنے گونڈوں سے یہ کام کروا کے ہی چھوڑے گا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تب وہ پیا کو بٹھاتا ہے اور پیا کو ساری بات بتانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ پیا کو کچھ بھی نہیں بتا پاتا اور تبھی وہ پیا کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کا والد پہلے ہی سامل سے بہت ہی زیادہ بدگمان ہو چکا ہے اور اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا. تو یہاں پہ جب برڈ شاپ پہ اگین حملہ ہوگا تو تب اس کے باپ کو خبر پہنچے گی کہ کچھ گنڈوں نے آپ کی برڈ شاپ پہ حملہ کر دیا ہے اور ادھر دھاوا بول کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بیڈ ریسٹ پہ ہے تو پیا بھاگتی دوڑتی وہاں پہ پہنچ جائے گی. تو سامل ادھر پہلے سے ہی پہنچا ہوا ہوگا اور وہ ان کو مار کٹائی کر رہا ہوگا تاکہ وہ اس زمین پہ قبضہ نہ کر سکے. لیکن یہاں پہ پیا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے یہ سمجھے گی کہ شاید یہ سارا کچھ سامل نے کیا ہے اور جب سامل اسے ملنے کے لیے آئے گا اور اپنی بات کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو تب وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنے گی اور کہے گی کہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی اور نہ ہی میں تم سے ایسے کوئی توقع کر سکتی تھی. اور اسی کسی بھی بات پہ یقین دیے بغیر کو اس کے منہ پہ دروازہ دے مارتی ہے. یہاں پہ سامل بہت ہی زیادہ مایوس لوٹ جاتا ہے اور تبھی وہ جا کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب گل بد گئی ہے اور کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب الیار بھی پیا کو جاننے لگا ہے اور تبھی وہ اپنے باپ سے اس کے رشتے کی بات کرتا ہے کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں لڑکی بہت ہی زیادہ پسند ہے اور آپ اور ماما جل کے اس کے گھر رشتے کے لیے جائیں. پہلے تو اس کا باپ مزاحمت کرتا ہے کیونکہ ان کی آپس میں بہت ہی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو تب وہ ایزیلی مان جاتا ہے. مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسے ہی پیا کے والد کی ملاقات ہوگی الیار کے والد سے تو وہ اس رشتے سے صاف منع کر دے گا اور اسے دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دے گا اور مزید یہ بھی کہے گا کہ کبھی اگین میرے گھر کا رخ نہ کرنا. دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.
सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है, और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब बर्ड शॉप पे अगेन हमला होगा तो तब उसके बाप को खबर पहुँचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी बर्ड शॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रेस्ट पे है, तो पिया भागती दौड़ती वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सामल उधर पहले से ही पहुँचा हुआ होगा और वो उनको मार कुटाई कर रहा होगा ताकि वो इस ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पे पिया गलतफहमी का शिकार होते हुए ये समझेगी कि शायद ये सारा कुछ सामल ने किया है और जब सामल उसे मिलने के लिए आएगा और अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करेगा तो तब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं तुमसे ऐसे कोई तवक्को कर सकती थी। और उसी किसी भी बात पे यकीन किए बगैर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा दे मारती है। यहाँ पे सामल बहुत ही ज़्यादा मायूस लौट जाता है और तभी वो जाके अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अब गल बद गई है और कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अलियार भी पिया को जानने लगा है और तभी वो अपने बाप से उसके रिश्ते की बात करता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप और मामा जल के उसके घर रिश्ते के लिए जाएं। पहले तो उसका बाप मुज़ाहमत कर है क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब वो इजीली मान जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही पिया के वालिद की मुलाकात होगी अलियार के वालिद से तो वो इस रिश्ते से साफ मना कर देगा और उसे धक्के देके अपने घर से निकाल देगा और मज़ीद ये भी कहेगा कि कभी अगेन मेरे घर का रुख ना करना। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है, और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब बर्ड शॉप पे अगेन हमला होगा तो तब उसके बाप को खबर पहुँचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी बर्ड शॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रेस्ट पे है, तो पिया भागती दौड़ती वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सामल उधर पहले से ही पहुँचा हुआ होगा और वो उनको मार कुटाई कर रहा होगा ताकि वो इस ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पे पिया गलतफहमी का शिकार होते हुए ये समझेगी कि शायद ये सारा कुछ सामल ने किया है और जब सामल उसे मिलने के लिए आएगा और अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करेगा तो तब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं तुमसे ऐसे कोई तवक्को कर सकती थी। और उसी किसी भी बात पे यकीन किए बगैर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा दे मारती है।
यहाँ पे सामल बहुत ही ज़्यादा मायूस लौट जाता है और तभी वो जाके अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अब गल बद गई है और कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अलियार भी पिया को जानने लगा है और तभी वो अपने बाप से उसके रिश्ते की बात करता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप और मामा जल के उसके घर रिश्ते के लिए जाएं। पहले तो उसका बाप मुज़ाहमत करता है क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब वो इजीली मान जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही पिया के वालिद की मुलाकात होगी अलियार के वालिद से, तो वो इस रिश्ते से साफ मना कर देगा और उसे धक्के देके अपने घर से निकाल देगा और मज़ीद ये भी कहेगा कि कभी अगेन मेरे घर का रुख ना करना। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब वर्कशॉप पे अगेन हमला होगा तो तब उसके बाप को खबर पहुँचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी वर्कशॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रेस्ट पे है, तो पिया भागती दौड़ती वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सामल उधर पहले से ही पहुँचा हुआ होगा और वो उनको मार कुटाई कर रहा होगा ताकि वो इस ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पे पिया गलतफहमी का शिकार होते हुए ये समझेगी कि शायद ये सारा कुछ सामल ने किया है और जब सामल उसे मिलने के लिए आएगा और अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करेगा तो तब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं तुमसे ऐसे कोई तवक्को कर सकती थी। और उसे किसी भी बात पे यकीन किए बगैर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा दे मारती है। यहाँ पे सामल बहुत ही ज़्यादा मायूस लौट जाता है और तभी वो जाके अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अब गल बद गई है और कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अलियार भी पिया को जानने लगा है और तभी वो अपने बाप से उसके रिश्ते की बात करता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप और मामा जल के उसके घर रिश्ते के लिए जाएं। पहले तो उसका बाप मुज़ाहमत करता है क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब वो इजीली मान जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही पिया के वालिद की मुलाकात होगी अलियार के वालिद से, तो वो इस रिश्ते से साफ मना कर देगा और उसे धक्के देके अपने घर से निकाल देगा और मज़ीद ये भी कहेगा कि कभी अगेन मेरे घर का रुख ना करना। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और
اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جب برڈ شاپ پہ اگین حملہ ہوگا تو تب اس کے باپ کو خبر پہنچے گی کہ کچھ گنڈوں نے آپ کی برڈ شاپ پہ حملہ کر دیا ہے اور ادھر دھاوا بول کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بیڈ ریسٹ پہ ہے، تو پیا بھاگتی دوڑتی وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ تو سامل ادھر پہلے سے ہی پہنچا ہوا ہوگا اور وہ ان کو مار کٹائی کر رہا ہوگا تاکہ وہ اس زمین پہ قبضہ نہ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ پیا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے یہ سمجھے گی کہ شاید یہ سارا کچھ سامل نے کیا ہے، اور جب سامل اسے ملنے کے لیے آئے گا اور اپنی بات کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو تب وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنے گی اور کہے گی کہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی اور نہ ہی میں تم سے ایسے کوئی توقع کر سکتی تھی، اور اسی کسی بھی بات پہ یقین دیے بغیر وہ اس کے منہ پہ دروازہ دے مارتی ہے۔ یہاں پہ سامل بہت ہی زیادہ مایوس لوٹ جاتا ہے اور تبھی وہ جا کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب گل بد گئی ہے اور کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب علیار بھی پیا کو جاننے لگا ہے اور تبھی وہ اپنے باپ سے اس کے رشتے کی بات کرتا ہے کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں لڑکی بہت ہی زیادہ پسند ہے اور آپ اور ماما جل کے اس کے گھر رشتے کے لیے جائیں۔ پہلے تو اس کا باپ مزاحمت کرتا ہے کیونکہ ان کی آپس میں بہت ہی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو تب وہ ایزیلی مان جاتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسے ہی دیا کے والد کی ملاقات ہوگی علیار کے والد سے تو وہ اس رشتے سے صاف منع کر دے گا اور اسے دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دے گا، اور مزید یہ بھی کہے گا کہ کبھی اگین میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ سیٹ سامل کو اسٹرکٹلی وارن کرتا ہے کہ جو بھی ہو جائے تم نے وہاں پہ قبضہ لے کے رہنا ہے، اور وہ مزید یہ بھی کہتا ہے کہ کیونکہ میں اس کا آگے سودا کر چکا ہوں اس لیے تمہیں تو پتا ہے کہ سیٹ اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سامل بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ سامل کے سامنے بہت ہی زیادہ بھاری رقم رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم اب مجھے مایوس نہیں ہونے دو گے، اس کو اپنے بندوں میں بانٹ دینا اور میرا کام ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف جب سامل کو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے نہ کیا تو سیٹ اپنے گونڈوں سے یہ کام کروا کے ہی چھوڑے گا، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تب وہ پیا کو بٹھاتا ہے اور پیا کو ساری بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ پیا کو کچھ بھی نہیں بتا پاتا اور تبھی وہ پیا کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کا والد پہلے ہی سامل سے بہت ہی زیادہ بدگمان ہو چکا ہے اور اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جب برڈ شاپ پہ اگین حملہ ہوگا تو تب اس کے باپ کو خبر پہنچے گی کہ کچھ گنڈوں نے آپ کی برڈ شاپ پہ حملہ کر دیا ہے اور ادھر دھاوا بول کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بیڈ ریسٹ پہ ہے تو پیا بھاگتی دوڑتی وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ تو سامل ادھر پہلے سے ہی پہنچا ہوا ہوگا اور وہ ان کو مار کٹائی کر رہا ہوگا تاکہ وہ اس زمین پہ قبضہ نہ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ پیا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے یہ سمجھے گی کہ شاید یہ سارا کچھ سامل نے کیا ہے، اور جب سامل اسے ملنے کے لیے آئے گا اور اپنی بات کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو تب وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنے گی اور کہے گی کہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی اور نہ ہی میں تم سے ایسے کوئی توقع کر سکتی تھی، اور اسی کسی بھی بات پہ یقین دیے بغیر وہ اس کے منہ پہ دروازہ دے مارتی ہے۔ یہاں پہ سامل بہت ہی زیادہ مایوس لوٹ جاتا ہے اور تبھی وہ جا کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب گل بد گئی ہے اور کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب علیار بھی پیا کو جاننے لگا ہے اور تبھی وہ اپنے باپ سے اس کے رشتے کی بات کرتا ہے کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں لڑکی بہت ہی زیادہ پسند ہے اور آپ اور ماما جل کے اس کے گھر رشتے کے لیے جائیں۔ پہلے تو اس کا باپ مزاحمت کرتا ہے کیونکہ ان کی آپس میں بہت ہی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو تب وہ ایزیلی مان جاتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسے ہی دیا کے والد کی ملاقات ہوگی علیار کے والد سے تو وہ اس رشتے سے صاف منع کر دے گا اور اسے دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دے گا، اور مزید یہ بھی کہے گا کہ کبھی اگین میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔
सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है। और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता। और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब वर्कशॉप पे अगेन हमला होगा, तो तब उसके बाप को खबर पहुँचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी वर्कशॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रेस्ट पे है, तो पिया भागती दौड़ती वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सामल उधर पहले से ही पहुँचा हुआ होगा और वो उनको मार कुटाई कर रहा होगा ताकि वो इस ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पे पिया गलत फहमी का शिकार होते हुए ये समझेगी कि शायद ये सारा कुछ सामल ने किया है। और जब सामल उसे मिलने के लिए आएगा और अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करेगा, तो तब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं तुमसे ऐसे कोई तवक्को कर सकती थी। और उसे किसी भी बात पे यकीन किए बगैर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा दे मारती है। यहाँ पे सामल बहुत ही ज़्यादा मायूस लौट जाता है और तभी वो जाके अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अब गल बढ़ गई है और कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अलियार भी पिया को जानने लगा है और तभी वो अपने बाप से उसके रिश्ते की बात करता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप और मामा जल के उसके घर रिश्ते के लिए जाएं। पहले तो उसका बाप मुज़ाहमत कर है क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब वो इजीली मान जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही पिया के वालिद की मुलाकात होगी अलियार के वालिद से, तो वो इस रिश्ते से साफ मना कर देगा और उसे धक्के देके अपने घर से निकाल देगा और मज़ीद ये भी कहेगा कि कभी अगेन मेरे घर का रुख ना करना। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है। और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता। और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब वर्कशॉप पे अगेन हमला होगा, तो तब उसके बाप को खबर पहुँचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी वर्कशॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रेस्ट पे है, तो पिया भागती दौड़ती वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सामल उधर पहले से ही पहुँचा हुआ होगा और वो उनको मार कुटाई कर रहा होगा ताकि वो इस ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पे पिया गलत फहमी का शिकार होते हुए ये समझेगी कि शायद ये सारा कुछ सामल ने किया है। और जब सामल उसे मिलने के लिए आएगा और अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करेगा, तो तब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं तुमसे ऐसे कोई तवक्को कर सकती थी। और उसे किसी भी बात पे यकीन किए बगैर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा दे मारती है।
यहाँ पे सामल बहुत ही ज़्यादा मायूस लौट जाता है और तभी वो जाके अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अब गल बद गई है और कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अलियार भी पिया को जानने लगा है और तभी वो अपने बाप से उसके रिश्ते की बात करता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप और मामा जल के उसके घर रिश्ते के लिए जाएं। पहले तो उसका बाप मुज़ाहमत करता है क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब वो इजीली मान जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही बिया के वालिद की मुलाकात होगी अलियार के वालिद से, तो वो इस रिश्ते से साफ मना कर देगा और उसे धक्के देके अपने घर से निकाल देगा और मज़ीद ये भी कहेगा कि कभी अगेन मेरे घर का रुख ना करना। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब वर्कशॉप पे अगेन हमला होगा तो तब उसके बाप को खबर पहुँचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी वर्कशॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रेस्ट पे है, तो पिया भागती दौड़ती वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सामल उधर पहले से ही पहुँचा हुआ होगा और वो उनको मार कुटाई कर रहा होगा ताकि वो इस ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पे पिया गलतफहमी का शिकार होते हुए ये समझेगी कि शायद ये सारा कुछ सामल ने किया है और जब सामल उसे मिलने के लिए आएगा और अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करेगा तो तब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं तुमसे ऐसे कोई तवक्को कर सकती थी। और उसे किसी भी बात पे यकीन किए बगैर को उसके मुंह पे दरवाज़ा दे मारती है। यहाँ पे सामल बहुत ही ज़्यादा मायूस लौट जाता है और तभी वो जाके अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अब गल बद गई है और कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अलियार भी पिया को जानने लगा है और तभी वो अपने बाप से उसके रिश्ते की बात करता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप और मामा जल के उसके घर रिश्ते के लिए जाएं। पहले तो उसका बाप मुज़ाहमत करता है क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब वो इजीली मान जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही बिया के वालिद की मुलाकात होगी अलियार के वालिद से, तो वो इस रिश्ते से साफ मना कर देगा और उसे धक्के देके अपने घर से निकाल देगा और मज़ीद ये भी कहेगा कि कभी अगेन मेरे घर का रुख ना करना। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सेठ सामल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सामल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो वो सामल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदूक में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सामल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सामल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और
उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब बर्ड शॉप पे अगेन हमला होगा तो तब उसके बाप को खबर पहुंचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी बर्ड शॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रेस्ट पे है, तो पिया भागती दौड़ती वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सावल उधर पहले से ही पहुँचा हुआ होगा और वो उनको मार कुटाई कर रहा होगा ताकि वो इस ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। लेकिन यहाँ पे पिया गलतफहमी का शिकार होते हुए ये समझेगी कि शायद ये सारा कुछ सावल ने किया है, और जब सावल उसे मिलने के लिए आएगा और अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करेगा तो तब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ना ही मैं तुमसे ऐसे कोई तवक्को कर सकती थी। और उसे किसी भी बात पे यकीन किए बगैर वो उसके मुंह पे दरवाज़ा दे मारती है। यहाँ पे सावल बहुत ही ज़्यादा मायूस लौट जाता है और तभी वो जाके अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अब गल बद गई है और कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अलियार भी पिया को जानने लगा है और तभी वो अपने बाप से उसके रिश्ते की बात करता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप और मामा जल के उसके घर रिश्ते के लिए जाएं। पहले तो उसका बाप मुज़ाहमत कर है क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब वो इजीली मान जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसे ही पिया के वालिद की मुलाकात होगी अलियार के वालिद से, तो वो इस रिश्ते से साफ मना कर देगा और उसे धक्के देके अपने घर से निकाल देगा और मज़ीद ये भी कहेगा कि कभी अगेन मेरे घर का रुख ना करना। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सेठ सावल को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि जो भी हो जाए तुमने वहाँ पे कब्जा लेके रहना है, और वो मज़ीद ये भी कहता है कि क्योंकि मैं इसका आगे सौदा कर चुका हूँ इसलिए तुम्हें तो पता है कि सेठ अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सावल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो वो सावल के सामने बहुत ही ज़्यादा भारी रकम रख देता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे मायूस नहीं होने दोगे, इसको अपने बंदों में बांट देना और मेरा काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब सावल को पता चलता है कि अगर ये काम मैंने ना किया तो सेठ अपने गुंडों से ये काम करवा के ही छोड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो पिया को उठाता है और पिया को सारी बात बताने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे वो पिया को कुछ भी नहीं बता पाता और तभी वो पिया को कहता है कि कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया का वालिद पहले ही सावल से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो चुका है और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। तो यहाँ पे जब बर्ड शॉप पे अगेन हमला होगा तो तब उसके बाप को खबर पहुंचेगी कि कुछ गुंडों ने आपकी बर्ड शॉप पे हमला कर दिया है और उधर धावा बोल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि उसके